وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ ساری بستی میں اس روز جشن کا سا سما تھا۔ شام کو اس خوشی میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس روز پہلی بار ناہبا نے بھی عملی طور پر جشن میں حصہ لیا۔ پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ناہبا ایک اچھی شمشیر زن اور تیر انداز ہوگی۔ اس نے بیک وقت 2 شمشیر زنوں سے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس کے علاوہ ناہبا نے تیر اندازی کا بھی کمال دکھایا۔ اس نے ایک تیر فضا میں چھوڑا اور پھر چند لمحے بعد دوسرے تیر سے پہلے تیر کے دمبالے کا نشانہ لیا اور اس کا چلایا ہوا دوسرا تیر پہلے تیر میں جا کر پیوست ہو گیا اور پھر دونوں تیر زمین پر ایک ساتھ آ کر گرے۔ لوگوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر ناہبا کے فن کی داد دی۔ ان لوگوں میں خود میں بھی شامل تھی۔ خاصی عمر ہونے کے باوجود اب تک اس کا جسم بے حد متناسب تھا۔ اس کے چہرے پر اب تک نوجوان 2 شیزاؤں جیسی تازگی اور حسن تھا۔ اس کے بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ سردار سارم البتہ اس کے مقابلے میں خاصا بوڑھا معلوم ہوتا تھا اور یوں ہی ناہبا سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ جشن میں ایک نوجوان مقدام بھی شریک تھا جس کے معنی دلیر اور شجاع کے ہیں۔ اس کی سردار سارم کے نائب کی حیثیت تھی۔ وہ بھی تخت پر میرے بائیں جانب بیٹھا ہوا تھا اور اکثر موقع پر میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ سردار سارم کی حسین بیوی ناہبا کے لیے مقدام کی آنکھوں میں ایک ایسی حسین چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے پسندیدگی اور محبت کا ہی نام دیا جا سکتا تھا، اور مجھے علم نہیں تھا کہ یہ محبت یک طرفہ تھی یا ناہبا نے مقدام کے لیے بھی دل دھڑکتا تھا۔ اس وقت میں میری مقدام کی آنکھوں میں مجھے ایسی ہی چمک نظر آئی جب ناہبا نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے تخت کی طرف لوٹ رہی تھی۔ بستی کی روایات اور قانون کے مطابق کسی دوسرے شخص کی عورت پر کوئی بھی ایسی صورت میں اپنا حق جتا سکتا تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر سے صاحب اولاد نہ ہوئی ہو۔ ناہبا کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ اب تک ماں نہیں بن سکی تھی مگر کسی نے بھی اس پر حق نہیں جتایا۔ کسی ایسی عورت کو جو ماں نہ بن سکی ہو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے دوسرے دعوے دار کو رد کر دے۔ ایسا غالباً اب تک اس لیے نہیں ہوا ہوگا کیونکہ یہ زندگی اور موت کا کھیل تھا۔ ایسی کسی عورت پر حق جتانے والے کو اس عورت کے شوہر یا اس کے نام مزدہ کسی شخص سے فیصلہ کن مقابلہ کرنا پڑتا تھا، اور یہ مقابلہ فیصلہ کن اس بار سے ہوتا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچتا۔ مقابلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کسی ایک شخص کو فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو جائے۔ ناہبا ابھی اپنے شوہر سردار سارم کے پہلو میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ میں نے اچانک مقدام کو اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اٹھ کر سیدھا ناہبا کے سامنے پہنچا اور 2 زانو بیٹھ کر ناہبا کا دایاں ہاتھ چوم لیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ناہبا کا پورا وجود اس کے دائیں ہاتھ میں منتقل ہو گیا ہو، جیسے مقدام کے ہونٹوں کے لمس سے وہ پگھل گئی ہو، اور یہ ناہبا پر اپنا حق جتانے کا برملا اظہار تھا۔ ایسی کسی عورت کو جس پر کوئی دوسرا مرد اپنا حق جتائے، اس کے حصول کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دے، قابل عزت و احترام سمجھا جاتا تھا، اور مقدس نے ناہبا کو یہ عزت بخش دی تھی۔ اس لمحے سردار سارم کے چہرے پر مجھے غیظ و غضب کے آثار دکھائی دیے۔ مقدام کی اس غیر متوقع عمل سے سارے مجمع میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بستی کے کسی سردار کی بیوی پر کسی دوسرے مرد نے اپنا حق جتایا تھا۔ مقدام پلٹ کر میری کرسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور پھر سر اٹھا کر بولا، اے آتون دیوی، مجھے اجازت دے کہ ناہبا پر اپنا حق ثابت کر سکوں۔ میرے لیے یہ صورتحال انتہائی عجیب تھی، اور میں نے پہلی بار ناہبا کی آنکھوں میں مقدام کے لیے محبت کی تحریر پڑھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ ایک عمر گزارنے کے باوجود
वो औरत उसकी नहीं हो सकी थी। जिस्मानी तौर पर मकदाम के मुकाबले में सरदार सारम बूढ़ा और कमजोर था और मुझे यकीन था कि वो मकदाम के मुकाबले पर ज्यादा देर ना ठहर सकता, मगर इसके बावजूद मैंने उसे अपने पहलू से तलवार निकालते देखा। वो मुकद्दर से नमर्द आजमा होने के लिए तैयार था और मेरे नजदीक ये खुदकशी ही थी और मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि सरदार सारम मारा जाए। ऐ सरदार सारम, मैं आतून देवी तुझे हुक्म देती हूँ कि अपनी जगह खामोशी से बैठा रह। और मैंने हुक्म दिया, मगर ऐ आतून देवी, सारम बेगैरत नहीं। उसके सामने कोई दूसरा मर्द उसकी औरत का हाथ थाम ले और वो खामोश रहे। सरदार रिकत अमीज आवाज में बोला, और मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मैं अपनी इज्जत बचाने का मुझे मौका दिया जाए। ऐ सरदार, कानून के मुताबिक तुझे अपनी जगह किसी और शख्स को नामज़द करने का हक हासिल है और वो तेरे लिए मेरा ये हुक्म है कि तू अपना ये हक इस्तेमाल कर। मकदाम से तू नहीं बल्कि तेरा नामज़द शख्स मुकाबला करेगा। मैंने गोया अपना फैसला सुना दिया। इसका मतलब ये है कि आतून देवी, तू ये चाहती है कि मैं अपनी तकदीर किसी और के हवाले कर दूं। सरदार सारम की आवाज भर्राई हुई थी। हाँ ऐ सारम, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मेरा लहजा कतई था और मैंने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, अगर तेरा नामज़द करदा शख्स मकदाम के हाथों मारा गया तो कानून के मुताबिक तेरी जगह मकदाम उस बस्ती का सरदार बना दिया जाएगा, और अगर मकदाम अपनी जान हार गया तो फिर तू ही नहबा और बस्ती का मालिक रहेगा, और फिर कभी तेरी औरत का हाथ थामने का किसी और को हक नहीं होगा। मगर मकदाम मेरी बीवी से उम्र में बहुत छोटा है और उसका जोड़ नहीं। सरदार सारम ने इस पर एतराज किया, औरत और मर्द की उम्रों का फर्क उनके मिलाप में रुकावट नहीं बनता। क्या खबर ऐ सारम, देवताओं को यही मंजूर हो और इस बस्ती को वारिस मिल जाए। मैंने सरदार सारम की बात का जवाब देकर मकदाम को मुखातब किया, जो अभी तक मेरे कदमों में दो जानू बैठा हुआ था। ऐ मकदाम, तुझे भी मैं इस तरह का ये हक देती हूँ कि तू अपनी जगह किसी और को नामज़द कर सकता है। ऐ आतून देवी, तेरा ये पुजारी मकदाम अपनी मोहब्बत की जंग खुद ही लड़ना चाहता है। और उसी वक्त खिलाफे तवक्का बूढ़ा सरदार समीर अपनी जगह से उठकर मेरे सामने सजदा रेज हो गया और उसने सर उठाया तो मैंने हैरत के साथ उसे दरियाफ्त किया, ऐ समीर, क्या तू भी इस मामले में कुछ कहना चाहता है? हाँ ऐ आतून देवी, मैं अपनी बहन नहबा पर हक जताने वाले जवान मर्द मकदाम की तरफ से इसका ख्वाहिशमंद हूँ। समीर ने अपनी दिल की बात कह दी और इस पर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने सोचा कि सरदार समीर के दिल में अब भी सरदार सारम के लिए इंतकाम लेने का जज्बा छुपा हुआ है, जिसका उसने बिलवास्ता अजहार कर दिया, और उसने अपनी बहन पर गोया सारम के हक को दिल से तस्लीम नहीं किया था। सरदार सारम को मैं यह हुक्म दे ही चुकी हूँ कि वो अपनी जगह और किसी को नामज़द कर दे, और यही हुक्म मैं मकदाम को भी दे सकती थी। सो मैंने ऐसा ही किया और मकदाम की तरफ से सरदार समीर की नामज़दगी को कबूल कर लिया। बूढ़े सरदार समीर के मुकाबले में सरदार सारम की तरफ से मुहाफिज दस्ते का कवि हिकल नगरान नामज़द किया गया तो मैंने मकदाम के चेहरे पर उदासी के बादल मंडलाते देखे। बूढ़े समीर और दरमियान वादे जिस्मानी फर्क था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो चुका, और मैंने करीब ही खड़ी हुई नहबा के चेहरे का जायजा लिया। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी और मुझे उसकी वजह भी मालूम थी। नहबा दोहरे रंज में गिरफ्तार थी। तवील अरसे के बाद पहली बार उसका बड़ा भाई समीर उससे मिला था और यूं लग रहा था कि वह फिर हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाने वाला हो, और दूसरी जन्म शायद इस मकदाम से हो जाने का मलाल था। समीर मारा जाता तो उसे मकदाम का कुर्ब भी हासिल ना होता। खुद मुझे भी पहले ये अंदाजा नहीं था कि सूरत हाल ये नया रुख इख्तियार कर लेगी। मैं इसीलिए अब पछतावा सा महसूस कर रही थी। कहीं अंदर से मेरी यह ख्वाहिश थी कि नहबा और मकदाम एक दूसरे के हो जाएं। उसकी वजह शायद ये थी कि मैंने उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की तहरीर पढ़ ली थी और मैं दो दिलों का मिलाप चाहती थी, मगर अब ये नामुमकिन सा लग रहा था। मैदान से समीर और यूं किसी एक की लाश उठाई जाती और मेरे ख्याल में वो लाश बूढ़े समीर ही की होती। बराह रास्त मुकाबले से पहले मुझे इसका अंजाम नजर आया। रवायात के मुताबिक ये मुकाबला तलवारों से होना था। दोनों अफराद को तलवार के साथ
एक एक ढाल भी दे दी गई और मेरी इजाजत मिलते ही समीर और यूह मैदान में एक दूसरे के मुकाबले आ गए। बूढ़े समीर पर पहला वार यूह ने किया और जिसे समीर ने पीछे हटकर अपनी ढाल पर रोक लिया और फिर तो यूह ने बूढ़े समीर को संभलने का मौका ही नहीं दिया। वो पे दर पे समीर पर वार किए जा रहा था, इतनी तेजी के साथ कि समीर को एक बार भी उस पर वार करने का मौका नहीं मिल सका। उसके बावजूद हैरत अंगेज बात यह थी कि कवि हिकल यूह अभी तक अपने हरीफ को ज़ाहिर नहीं कर सका था। इब्तदा में यही मालूम हो रहा था कि इस मुकाबले का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल महसूस अब भी यही हो रहा था कि यूह किसी भी लम्हे अपने मुकाबले को बिछाड़ लेगा और खिलाफे तवक्का मुकाबला तूल खींचता चला गया। और मैंने वहां मौजूद सभी अफराद ने वाज़ेह तौर पर यह बात महसूस की कि अब कवि हेकल यूह के हमलों में पहले जैसी शिद्दत नहीं रही। वो कुछ थका थका सा मालूम हो रहा था। बूढ़े समीर ने उसे खासा थका दिया और यूं गहरे गहरे सांस ले रहा था कि उसके जिस्म में हरकत करते हुए तेजी नहीं रही थी। अब सूरत हाल ऐसी थी कि समीर जवाबन थके हुए यूं पर हमला कर सकता था, लेकिन अब तक उसने अपना सिर्फ बचाव ही किया था और एक मर्तबा भी बूढ़े समीर ने यूं पर अपनी तलवार बुलंद नहीं की। मजीद कुछ देर बूढ़ा समीर अपने हरीफ को हमला हावर होने का मौका देता रहा और यूं अब नुमाया तौर पर हाँफने लगा था। वो समीर पर हमला करने से गुरेज करने लगा और एक मौका पर जब कवि हेकल यूं अपने हरीफ समीर के कुछ फासले पर खड़े होकर दम लेने लगा तो समीर ने उसे चिढ़ाया, ऐ यूं बुज़दिली ना दिखा और आ मुझ बूढ़े को कत्ल कर दे। तेरे लिए ऐसा करना बहुत ही आसान है। हाँ शाबाश आजा और ये देख मैं अपनी ढाल भी फेंके दिए देता हूँ। अब तो शर्म कर ले ऐ पले हुए भैंसे। ये कहते ही बूढ़े समीर ने वाकई अपनी ढाल एक तरफ फेंक दी। यूं का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वह चीख उठा, ऐ मेरे सरदार के कदीम दुश्मन, मुझे बुज़दिली का ताना ना दे और संभल के तेरा आखिरी वक्त आ गया। और फिर यूं बूढ़े समीर पर पल पड़ा। समीर उसकी वार अपनी तलवार पर रोकता रहा। कभी वो कवि हेकल यूं के वार से बचने के लिए पीछे हटता, कभी दाएं जानब झुक जाता और कभी बाएं तरफ हो जाता, कभी उछलता और कभी तेजी के साथ सर झुका लेता। वो बिजली की तरह कूद कूद कर यूं के हमलों से खुद को बचा रहा था और यूं लग रहा था जैसे बूढ़े समीर के जिस्म में कोई बदरूह हलूल कर गई हो। आखिर एक बार फिर यूं पर नकाहत तारी होने लगी और वह बुरी तरह हाँप रहा था। अपने आका अपने सरदार का हक़ नमक अदा कर, ए बुज़दिल नमक हरामी पर कमर ना बांध। बूढ़े समीर ने पीछे हटकर सस्ताने वाले यूं को पहले की तरह चिढ़ाया और इस मर्तबा यूं ने अपनी हर जगह से हरकत नहीं की। वो दूर खड़ा हाँपता रहा और अपने हरीफ को खौनख्वार नजरों से घूरता रहा। ऐ नमक हराम, मुझे यूं लगता है कि अब तेरा आखिरी वक्त करीब आ गया। ये कहता हुआ बूढ़ा समीर किसी उकाब की तरह जैसे उड़ता हुआ यूं के सर पर पहुंच गया और पहली बार बूढ़े समीर ने अपने कवि हिकल हरीफ पर तलवार बुलंद की। यूं ने जैसे बेदिली के साथ समीर का वार अपनी ढाल पर रोकना चाहा, मगर नाकाम रहा। समीर ने उसका एक बाजू लहूलुहान कर दिया था और यूं चीख उठा और मैंने वाज़ेह तौर पर यह बात महसूस कर ली कि बूढ़ा समीर अपने हरीफ से चूहे और बिल्ली का खेल खेल रहा था। वो चाहता तो अब तक कभी का यूं को कत्ल कर चुका होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो यूं के जिस्म पर जख्म सजाता रहा यहाँ तक कि यूं के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। बूढ़े समीर ने खिलाफे तवक्का इस मौका से भी फायदा नहीं उठाया और उछल कर पीछे हट गया। अपनी मौत को आसान ना बना, ऐ यूं उठ, अपनी तलवार हाथ में ले और मेरा मुकाबला कर। बूढ़े समीर ने यूं को मुखातब किया और मजबूरन यूं कोहनियों के बल उठा और तकरीबन घिसटता हुआ अपनी तलवार तक पहुंचा ही था कि समीर लपक कर वहां पहुंच गया और उसने तलवार को ठोकर मार के यूं से दूर कर दिया। हाँ शाबाश, कोशिश कर। यह कहते हुए बूढ़े समीर ने यूं के सर पर ठोकर मार दी। जरब इतनी शदीद थी कि यूं आगे बढ़ते बढ़ते कराह कर ढेर हो गया। उसके बाद समीर ने यूं को ठोकरों पर रख लिया। वो पहले ही लहूलुहान और नडाल था और अपने सर पर पड़ने वाली ज़रबों ने उसे मजीद हलकान कर दिया। बार बार बूढ़ा समीर उसे उठने को कहता और जब वो उठने लगता तो ठोकर मारकर उसे गिरा देता और कुछ ही देर में यूं पर बेहोशी सी तारी हो गई। और शायद बूढ़ा समीर यही चाहता भी था कि वो बेहोश यूं के सीने पर
पैर रखकर खड़ा हो गया। ए आतून देवी, तूने और यहाँ मौजूद सब लोगों ने देख लिया कि मैंने अपने हरीफ को मार गिराया है। ये मेरे इख्तियार में है कि मैं इसका सर काट लूं। सभी देख रहे हैं कि ये मुझे ऐसा करने से रोकने का अहल नहीं रहा। सो मैं जीत गया। क्या तू मुझे जीता हुआ मानती है? अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसका सर काट लूं, मगर ये शायद इस पर जुल्म होगा और मुझ पर भी कि मैंने कभी गिरे हुए लोगों पर हाथ नहीं उठाया। बूढ़ा समीर मुझसे मुखातब था और मेरा ख्याल है कि यूं ने अपने आका सारम का हक नमक अदा कर दिया है। वो सारम का जवाब उस बस्ती का सरदार नहीं रहा और वो ये हक खो चुका है। बोल ए आतून देवी, क्या तू मेरी बहन नहबा को जवां मर्द मकदाम की बीवी बन जाने की इजाजत दे देगी और सारम की इस बस्ती का सरदार मुकद्दाम को बना देगी? और हम तुझसे इंसाफ के तालब हैं। और खिलाफे तवक्का वही हो गया था जो मेरी ख्वाहिश थी। मकदाम को नहबा मिल गई और अब तक किसी का खून नहीं बहा। इसलिए नहीं बहा था कि सरदार सारम भी जिंदा बच गया था और मकदाम भी। सरदार समीर भी जिंदा सलामत रहा और अगर यूं की गर्दन काट ली जाती तो उसे किसी को कोई नफा ना होता। यूं भी वह बराह रात इस मामले में मुलव्वस नहीं था। समीर ने गलत नहीं कहा था कि यूं का सर काट लेना जुल्म होता और असूलन समीर जीत चुका था। वो अपने हरीफ पर गालिब आ गया और इंसाफ का तकादा ये था कि समीर को जीता हुआ करार दे दिया जाता। उसके लिए यूं का कत्ल होना जरूरी नहीं था, खास तौर पर ऐसी सूरत में कि खुद गालिब आने वाला शख्स अपने हरीफ की जान बख्शी पर आमादा था। मामले के हर पहलू पर अच्छी तरह गौर कर लेने के बाद मैंने फैसला सुना दिया। ए समीर, तुझे फतेहमंद करार दिया जाता है और मैं तुझे यूं का सर काट लेने पर मजबूर नहीं करती। यह कहकर मैंने मैदान से बेहोश यूं के जिस्म को उठा लेने का हुक्म दिया और फिर बोली। यूं को सरदार सारम ने अपनी जगह नामजद किया था और यूं मुकाबला हार गया। सो सरदार सारम को शिकस्त खुर्दा करार दिया जाता है और वो अपनी बीवी नहबा पर और उस बस्ती की सरदारी का हक खो चुका है। सो अब से बस्ती का तरियाल पर सरदारी का हक के मकदाम को है और वही आज से नहबा का शोहर है। बड़े पुजारी को हुक्म दिया जाता है कि वह मकदाम और नहबा को एक दूसरे का पर्दा बना दे। उसी वक्त सरदार सारम, जो मेरे हुक्म के मुताबिक माजूल किया जा चुका था, अपनी जगह से उठा और भर्राई हुई आवाज में बोला, मुझे आतून देवी का फैसला कबूल है। उसी लम्हे से नहबा मुझ पर हराम हुई और मैंने उसको आजाद किया। यह कहते ही सरदार सारम मेरे सामने सजदा रेज हुआ और फिर इससे पहले कि मुझे या किसी और को उसके इरादे का इल्म होता, उसने मेरी दाई कलाई पर लिपटे हुए जहरीले सांप पर हाथ डाल दिया और सांप ने तवक्का के मुताबिक उसे डस लिया। मगर मैंने देखा कि सरदार सारम के चेहरे पर तकलीफ और अजियत की बड़ी असुदा सी मुस्कुराहट थी। ए आसारम, तूने ये क्या किया? मेरे मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकले। वही ए आतून जो एक गैरतमंद मर्द को करना चाहिए। सारम की आवाज धीमी थी। मैं बेआबरू होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। ए आतून देवी, इस मर्द को जीने का कोई हक नहीं जिससे उसकी बीवी को छीन लिया जाए और इख्तिदार से भी उसे महरूम कर दिया जाए। मकदाम और नहबा को मैंने और मेरे देवता ने माफ किया। मेरी दुआ है कि नहबा की गोद बढ़ जाए और उस बस्ती का उसे वारस मिल जाए। मुझे गहरी नींद आ रही थी। ऐ देवी, मैं सो रहा हूँ, हमेशा के लिए सो रहा हूँ। ये कहते कहते सारम तख्त पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। उसी लम्हे मैंने नहबा के चेहरे का जायजा लिया। वो मुझे इंतहाई मुस्तरिब नजर आ रही थी। मकदाम अब उसके पहलू में आ बैठा था। नहबा का नरमो नादक हाथ मकदाम ने अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर तक सारम पर गफलत तारी रही और फिर उसका सर एक तरफ को ढलक गया। उसका जिस्म सांप के जहर की वजह से नीला पड़ गया था और मेरे नजदीक मरने वाले का फैसला गलत नहीं था। वो शायद इस जिल्लत की जिंदगी के बाद उसकी बीवी से उसे छीन गई थी और बस्ती का सरदार भी नहीं रहा था। वो एक रोज भी जिंदा ना रहता और वह जीते जी मर गया था और मेरे हुक्म पर उसकी लाश वहां से हटा दी गई और बड़े पुजारी ने उसकी जगह मेरे कदमों में बैठकर मकदाम और नहबा की रसूम अदा की। उन दोनों ने रसूम के आखिरी मरहले में एक दूसरे की पेशानी चूमकर यह तस्दीक की कि वो इस नए रिश्ते पर राजी हैं। इस मौके पर नए सरदार मकदाम के हक में लोगों ने नारे बुलंद किए और फिर सरदार सभी ने रस्म के मुताबिक अपनी बहन की झोली में कई डले सोना डाला और मुझे उस बूढ़े के जिस्म में
कोई शैतानी रूह मालूम होती थी। वो हस्बे साबक हशाश बशाश नजर आ रहा था। उसके हलकों में धंसी हुई छोटी छोटी सुर्ख आंखें शोलों की तरह दहक रही थीं। वो सांप जो मेरी दाईं कलाई से अब तक लिपटा हुआ था, 2 जीते जागते इंसानों की जान ले चुका था, और मैंने करीब ही बैठे हुए नए सरदार मकदाम के पहलू से जरा झुक कर खंजर खींच लिया और फिर कई जगह से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बल खुल गए तो मैंने अपने हाथ को झटका दिया। कटे हुए सांप के टुकड़े चंद लम्हे तड़प कर साकत हो गए और उसके बाद मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और जिशन के खत्म होने का ऐलान कर दिया। सरदार मकदाम सारम की जगह हवेली में आ गया। नहबा और मकदाम ने ख्वाबगाह में जाने से पहले मुझे ताज़ीम दी और मैंने नहबा के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी। ऐ नहबा, मेरी दुआ है कि देवता तेरी गोद भर दें और तू इस बस्ती के वारिस को जन्म दे, तुझे नई जिंदगी मुबारक हो। उस वक्त अहरस भी मेरे पास मौजूद था। जब वो नो ब्याहता जोड़ा दुआ लेकर चला गया तो अहरस मुझसे मुखातब हुआ, ऐ आतून, क्या तेरा दिल नहीं चाहता कि देवता तेरी गोद भी भर दें? उसके लहजे में शरारत थी। तू शायद इसलिए फिर चहकने लगा है, ऐ अहरस, कि मेरी कलाई खाली हो चुकी है। मेरा इशारा उस सांप की तरफ था जो मेरी कलाई से लिपटा हुआ था। तेरी कलाई में सांप नहीं, सुहाग की चूड़ियां अच्छी मालूम होंगी, वो मुस्कुराकर बोला, और वो चूड़ियां मैं तुझे पहनाऊंगा। क्या तू मुझसे डरता नहीं? मैंने भी मुस्कुराकर उससे पूछा। तुझसे डरूंगा? वो आहिस्ता से हंसा। तुझे तो मैं खुद बचपन से डराता आया हूँ। भूल गई है तू कि तू चूहे से कितना डरती है? डरती नहीं जी। हाँ, फजूल ना बको, मुझे घिन आती है चूहों से। सुना है सांप बड़े मजे से चूहे को निगल जाता है और तू उसी सांप को अपने गले में डालकर गंदी कहीं की। अब ये चूहे का किस्सा छोड़ दे, वरना जानता है तू मुझे नाराज हो जाऊं तुझसे। बस तेरे पास एक यही तो सबसे बड़ा हथियार है मेरे खिलाफ। तू जानती है कि मैं तुझे नाराज नहीं देख सकता। दरअसल जब तू नाराज होती है आतून, तो बड़े सड़े सड़े मुंह बनाती है। मैं और अहरस उस रात देर तक एक दूसरे को छेड़ते रहे, तंग करते रहे, और फिर वादी सब्ज पर जिक्र छिड़ गया और हम संजीदा हो गए। दूसरे दिन सुबह सरदार सारम की आखिरी रसूम अदा कर दी गई, जिसमें पूरी बस्ती ही ने शिरकत की थी। अब तक सरदार समीर बस्ती तरियाल ही में था। उसे मेरे आइंदा अक़दामात के बारे में नए सरदार से मालूम हुआ तो वह मुझसे बोला, ऐ आतून देवी, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं भी तेरे साथ चलूं। तू बस मुझे मेरी बस्ती तक जाने का मौका लौट कर आ जाने की इजाजत दे दे। समीर बोला और उसके लहजे में मेरे लिए अकीदत का इज़हार हो रहा था। क्या तू अपनी बस्ती से लड़ाका लोगों के साथ लाने के लिए जाना चाहता है? ऐ समीर, अगर ऐसा ही है तो इसकी जरूरत नहीं। बस्ती तरियाल में तेरे साथ जाने वालों की कमी भी नहीं और असला भी खासा है, मैंने समीर से कहा। एक वजह लड़ने वालों के साथ लाने की भी थी, वो कहने लगा। क्या दूसरी कोई वजह भी थी? हाँ, जाने की, मैंने मालूम किया। मेरा सवाल सुनकर बूढ़ा समीर औरतों की तरह शर्माने लगा तो मेरे दिल में भी और भी तजस्सुस पैदा हो गया और मैंने वजह बताने पर इसरार किया तो वह नजरें झुकाकर बोला, वो आतून देवी, मैं अपनी बीवियों से जुदा नहीं रह सकता। अगर मुझे तेरे साथ वादी सब्ज की तरफ जाना पड़ा तो उनका मेरे साथ होना जरूरी होगा। उसने रुक रुक कर और शर्माते हुए बताया। उस बूढ़े की मुझे ये बात बहुत दिलचस्प और अजीब मालूम हुई, जो अपनी बीवियों के बगैर ज्यादा दिन अकेला नहीं रह सकता था, और मेरे ख्याल में वो तो हड्डियों का ढांचा इस काबिल ही नहीं था कि अपनी किसी एक बीवी के साथ ही इंसाफ कर सकता, और वो बीवी की बजाय बीवियों की बात कर रहा था। कितनी बीवियां हैं तेरी ऐ समीर, और क्या वो भी तेरी ही तरह बूढ़ी नहीं होंगी? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मैं अपनी बीवियों की तादाद कभी 9 से ज्यादा नहीं बढ़ने देता, उसने मेरी बात का जवाब दिया, और उनमें से कोई भी 20 साल से ज्यादा उम्र की नहीं। क्या? मैं हैरान रह गई। तू क्या कह रहा है ऐ समीर? मैं ठीक ही कह रहा हूँ ऐ आतून देवी। उसने बताया कि जब मेरी किसी बीवी की उम्र 20 साल से तजावत कर जाती है तो मैं उसे आज़ाद कर देता हूँ। उसे मेरी तरफ से इजाज़त होती है कि आज़ाद होने के बाद वो किसी को भी अपना शोहर बना ले, और मैं फिर कोई नई बीवी अपनी हवेली में ले आता हूँ। और अगर तेरी आज़ाद करदा औरत तेरे बच्चे की माँ बन चुकी हो तो उसे बच्चा अपने साथ ले जाने की भी इजाज़त होती है, मगर सिर्फ उस वक़्त तक जब तक बच्चा उसका दूध पीता रहे, और फिर उसे बच्चा वापस करना पड़ता है। तेरे कितने बच्चे हैं? मैंने सवाल किया। 100 से कुछ ऊपर होंगे, शायद 112 या 15। तेरी उम्र कितनी है ऐ समीर?
ज्यादा नहीं 70 साल के करीब है। उसने बताया कि मेरी बहन नहबा मुझसे 30 साल छोटी होगी। वो मेरे बाप अस्तीला की सबसे छोटी बीवी की औलाद है और मैं अपने बाप की पहली बीवी का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे बाप की 11 बीवियां थी। समीर की बातें मेरे लिए अजीब भी थी और दिलचस्प भी थी और मैं इसीलिए उससे गुफ्तगू कर रही थी। वो तो खुद मुझे भी अपनी बीवी बनाने के चक्कर में था और अगर कुदरत मेरी मदद ना करती तो ना जाने उसके साथ मेरा क्या हशर होता। वो 70 साला बूढ़ा मुझे 4 साल के बाद अपनी हवेली से निकाल देता। उसकी गुफ्तगू के दौरान हुए मेरे ज़हन में एक और सवाल उभरा और फिर वो सवाल मेरी जुबान पर भी आ गया। मैंने कहा कि ऐ समीर, ये बता, क्या तूने दिल से सरदार सारम को माफ नहीं किया था? मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा ऐ आतून देवी, मेरे दिल से बरसों पुरानी दुश्मनी धुल नहीं सकी और मैं कोशिश के बावजूद ये बात नहीं बुला सका था कि सारम के बाप अकबा को यह हक हासिल नहीं था कि वो मेरी बहन नहबा को अपने बेटे की बीवी बना ले। और यही वजह थी कि जब नहबा पर मकदाम ने अपना हक जताया तो मुझे खुशी हुई और फिर तूने देखा कि मैं सारम से अपनी बहन को मैंने छीन लिया। तू शायद ये जानती होगी ऐ आतून देवी कि बरसों की दुश्मनी जो लम्हों में खत्म नहीं हो जाती, उस दुश्मनी को खत्म होने में लंबा अरसा लगता है और तेरे हुक्म से कतई नजर मुझे यकीन है कि सारम का दिल भी मेरी तरफ से साफ नहीं होगा। समीर ने तफसील से जवाब दिया। मुझे खुशी है समीर कि तूने मुझसे झूठ नहीं बोला। अब मुझे ऐसी ही सच्चाई के साथ ये भी बता दे कि सारम की मौत के बाद तू बस्ती तरियाल की तरफ से तेरे दिल में कोई नफरत तो नहीं? ऐ आतून देवी, बस्ती तरियाल अब मेरी बहन नहबा का घर है और भाइयों पर अपनी बहनों के घर की हिफाजत भी अपने ही घर की तरह फर्ज है। अगर तू ये कहेगी कि पहले तो ये बस्ती मेरे बहन का घर, तो मैं उसे अपनी बहन का नहीं अपने दुश्मन का घर समझता था जिसने जबरदस्ती मेरी बहन को अपने घर में डाल लिया था। समीर ने मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसी वक्त मकदाम और नहबा आ गए और वो दोनों ही बहुत खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। बेकौले समीर के नहबा 40 साल की हो चुकी थी मगर हरगिज़ इतनी उम्र की नहीं लगती थी। मकदाम 25 साल से ज्यादा का नहीं था और यूं तो वो अपनी बीवी से 15 साल छोटा था मगर उम्रों की इस फर्क के बावजूद वो मियाँ बीवी ही लग रहे थे। नहबा के चेहरे पर ऐसी ताजगी और शुगुफ्तगी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ऐ आतून देवी, हम दोनों इसलिए तेरे पास आए हैं कि मेरे साथ मेरी बीवी नहबा भी दादे सब्ज़ जाना चाहती है और तेरे शाना बिशाना लड़ सके। सरदार मकदाम ने अदब से झुककर गोया इल्तिजा की और हमको तुझसे इजाज़त चाहिए। मगर ए मकदाम, तुझसे ये किसने कह दिया कि मैं तुझे अपने साथ वादी सब्ज़ ले जा रही हूँ? तू और मेरी बीवी नहबा यहीं बस्ती तरपाल में रहेंगे। मैंने अपना फैसला सुना दिया और मेरे ख्याल में इस नौब्याहता जोड़े को अपने साथ ले जाना जुल्म होता। लेकिन तू पहले मुझे अपने साथ ले जा रही थी, फिर अब क्यों महरूम कर रही है ऐ आतून देवी? मकदाम आजिज़ी से बोला। पहले और बात थी और अब और बात है। पहले ना तू नहबा का शोहर था और ना इस बस्ती का सरदार। और सुन मकदाम, देवी देवताओं के फैसलों को दिल से कबूल कर लिया तो वो जो कुछ करते हैं तुम्हारी ही भलाई के लिए होता है। मेरी बात सुनकर मकदाम और नहबा ने अज़हारे फरमाबरदारी में अपने सर झुका लिए। जब उन दोनों का मामला तय हो गया तो बूढ़ा समीर एक बार फिर बोल उठा। और मेरे लिए क्या हुक्म है आतून देवी? तू जब तक चाहे अपनी बहन के पास रह और जब चाहे अपनी बस्ती की तरफ लौट जा। मैं तुझे भी उसके अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैंने फैसला सुना दिया। फिर इजाज़त दे मुझे कि मैं आज ही अपनी बस्ती। नहबा ने अपने भाई समीर की बात काट दी और बोल उठी। ऐ मेरे सबसे बड़े भाई समीर, मैं तुझे इतनी जल्दी खुद से जुदा नहीं करूंगी। मैंने तो होश संभालने के बाद पहली बार तुझे देखा है। और फिर नहबा मुझसे मुखातब हुई। ऐ आतून देवी, तू इसे अपनी वापसी की इजाज़त ना दे। मैं भला एक बहन को उसके भाई के बारे में क्या बताती कि उसका भाई ज्यादा दिन अपनी नौजवान बीवियों से जुदा नहीं रह सकता। और मैंने इसलिए यह कहकर अपना दामन बचा लिया कि ये तुम दोनों बहन भाइयों का मामला है। तुम जानो, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। बूढ़ा समीर बहुत गाग था। उसने मैनिकेत नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, ऐ आतून देवी, तुझसे मेरे दिल का हाल छुपा हुआ नहीं। तू खुद जानती है कि अपनी बस्ती की तरफ जल्द लौटने का ख्याल मेरा किस मजबूरी को दखल है और तू ही नहबा और मेरा फैसला कर दे।
मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द वापस आऊंगा और उसकी भाभीयों को भी साथ लाऊंगा जिन्हें अब तक उसने नहीं देखा। बूढ़े समीर का इशारा मैं अच्छी तरह समझ गई और मैंने इसलिए बात को खत्म करने की खातिर कहा, ऐ नहबा, इसे वक्त अपने भाई को लौट जाने दे और जल्द ही ये अपना वादा पूरा करेगा और तू अपनी भाभीयों को भी देख सकेगी। ठीक है, नहबा मान गई। अगर ये भाभीयों को अपने साथ ले आकर आने का वादा कर रहा है और मैं इस वक्त उसे नहीं रोकती। सभी ने गहरा सांस लिया, जैसे कोई बड़ा बोझ सर से टल गया हो, और फिर वह सभी मुझे ताज़ीम देकर गए और उसी वक्त मैंने महापुजारी को आते देखा। ए आतून, मुझे बता कि अब यहाँ से हमारी रवानगी कब है? क्या तूने कोई फैसला कर लिया है? पुजारी ने बैठते हुए पूछा। हाँ, अब कोई मसला नहीं रहा, हम कल सुबह रवाना हो सकते हैं। तमाम तैयारियां पहले ही हो चुकी थी। ख्याल है कि सिर्फ रवानगी का ऐलान काफी है। अब तो बस्ती तरियाल पर हमले का खतरा भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। और मैंने महापुजारी की बात का जवाब दिया। जाहिर है कि अब सरदार सारम की जगह हमारे साथ नया सरदार मकदाम जाएगा, अगर तू कहे। नहीं, मैंने महापुजारी की बात काट दी। उसे साथ ले जाने की जरूरत नहीं, मैं मकदाम को कह चुकी हूँ। कोई वजह है उसकी आतून? तूने ही अभी कहा था कि अभी खतरा नहीं रहा। उसकी वजह कोई खतरा नहीं है महापुजारी। मकदाम ने एक नई जिंदगी में कदम रखा है और वक्त उसके लिए फिर वापस नहीं आएगा। इस पर महापुजारी ने तवील सांस ली और फिर कहने लगा, तू ठीक कहती है आतून, मुझे खुशी है कि तू दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखती है और तेरी सरदश्त में खुदगर्दी नहीं। अब तेरी इजाजत हो तो मैं कल सुबह रवानगी का ऐलान करा दूं। और मैंने महापुजारी को इसकी इजाजत दे दी। हमले का खतरा टाल जाने की वजह से अब उन सिपाहियों को बस्ती में छोड़ने की जरूरत नहीं रही थी, और फिर भी बतौर एहतियात मैंने कुल सिपाहियों की तादाद चौथाई हिस्सा बस्ती ही में छोड़ देने का फैसला किया और उसे सरदार मकदाम को आगाह कर दिया। और दूसरे रोज सुबह ही सुबह दीदारे आम के बाद लश्कर रवाना हो गया। सरदार मकदाम, नहबा, पुजारी और बस्ती वाले हमें बस्ती के बाहर तक छोड़ने आए थे और लश्कर के आगे आगे 3 घोड़े, जिनमें से एक पर मैं सवार थी और मेरे दाएं बाएं महापुजारी और अहरस के घोड़े थे। इस बरता मेरे लिए घोड़े के इंतखाब में एहतियात से काम लिया गया था और मेरी सवारी में वो घोड़ा था जो कभी सरदार सारम के लिए मखसूस था। ये सेहतमंद, तंदुरुस्त, मुश्किल घोड़ा था। हमें सफ़र करते हुए वो तीसरा दिन था कि हम एक पहाड़ी घाटी में सफ़र कर रहे थे और हमारी दोनों जानब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। अचानक हमें अपने रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर नजर आए, जिनकी वजह से रास्ता तकरीबन मसदूद हो गया था और पत्थरों की एक दीवार सी हमारे राह में हायल थी। पत्थर इस तरह तरतीब से चुने हुए थे जैसे उन्हें दानिस्ता किसी ने हमारा रास्ता रोकने के लिए यहाँ रखा हो। आहरस ने अजहारे ख्याल किया। महापुजारी ने भी आहरस के ख्याल से इत्तफाक किया और उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आने लगे। उन पत्थरों को अपने रास्ते से हटाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ख्याल है कि हमें पत्थरों को रास्ते से हटाने का काम शुरू। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई कि पत्थरों की इस मसनूई दीवार की दूसरी जानब से 2 घुड़सवार आते दिखाई दिए और जल्द ही वो दीवार की दूसरी तरफ आकर रुक गए। उनमें से एक, जिसका चेहरा लंबूतरा था, बुलंद आवाज में कहने लगा, ए अजनबी लोगों, हम तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, मगर राहदारी जरूर तलब करेंगे। इधर से कोई भी काफिला या लश्कर राहदारी अदा किए बगैर नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये इलाका अजीम सरदार हमाम का इलाका है। हमाम जो सरदारों का सरदार और मर्द बुजुर्ग हिम्मतों खुश तदबीर है। ऐ शख्स, राहदारी से तेरी क्या मुराद है, बयान कर। मैंने उसकी बात सुनकर वजाहत चाही। ए औरत, तू चुप रह। लंबूते चेहरे वाले ने हकारत से मुझे डांट दिया और फिर बोला, औरतों के बाल लंबे और अकल कोताह होती है। तू किसी मर्द को मुझसे बात करने दे। औरतों को हम सिर्फ बच्चे पालने और मर्दों के दिल बहलाने का हक देते हैं कि वो इससे ज्यादा की अहल नहीं होती। अपनी जुबान संभाल ले ए अजनबी। आहरस गुस्से से चीख उठा और फिर अपनी राइफल उसकी तरफ सीधी कर दी। ए नौजवान, कोई अहमकाना कदम उठाने से पहले अपने दाएं और बाएं जानब जरूर देख ले, लंबूतरे चेहरे वाले ने जवाब में कहा। आहरस और मेरी निगाहें बीक वक्त पहाड़ों की तरफ उठी। दोनों तरफ से हमें राइफलों की नाले अपनी जानब उठी हुई नजर आईं। जो लोग भी हमें अपने निशाने पर लिए हुए थे, हमारी नजरों से उजल थे। सुन ए अजनबी और बेवकूफ इंसान,
लंबूते चेहरे वाला फिर बोला, हम इन्हें खोखले पहाड़ कहते हैं। इन पहाड़ों में हमने ऐसे मजबूत मोर्चे बनाए हैं कि अजीम सरदार हमारे गुलाम हर तरह से महफूज रहेंगे और उन पर नीचे से किया जाने वाला हर हमला नाकाम रहे और वो अपनी जिद पर आ जाने वालों को बड़ी आसानी के साथ भून कर रख दें। अब समझ गया तू, अपनी राइफल की नाल झुका ले, इसी में तेरी बेहतरी है। सूरत हाल की संगीनी का मुझे पूरी तरह एहसास हो गया। लंबूते चेहरे वाला गलत नहीं कह रहा था। हम अपनी नजर से उजल दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे दुश्मनों को हम पर बर्तरी हासिल थी। और मुझे आज सुबह का वाकया याद आ गया। कुछ सिपाहियों ने रवानगी से कबल ये बताया था कि रात के वक्त लश्कर के इर्द गिर्द कुछ पुरइसरार सी नकलो हरकत देखी गई। सिपाहियों को शुबा था कि कुछ नामालूम अफराद उन पर नजर रखे हुए हैं और महापुजारी ने उसे सिपाहियों का वहम कहकर टाल दिया था, क्योंकि उन्होंने वादे तौर पर किसी को भी नहीं देखा। और मौजूदा गैर मुतवक्का वाकया पेश आने के बाद अब मेरे नजदीक रात वाला वाकया तवहम नहीं रहा था। यकीनन गुज़श्ता रात ही सरदार हमाम के आदमी हम पर नजर रखे हुए थे। लंबूतरे चेहरे वाले की धमकी के बाद महापुजारी ने हाथ बढ़ाकर आहरस की उठी हुई राइफल की नाल झुका दी और फिर वो सवाल अपनी जुबान से दोहरा दिया जो मैंने किया था। लंबूते चेहरे वाले ने राहदारी की वजाहत कर दी। तुम्हारी जितनी भी गिनती है उसमें से चौथा हिस्सा हमारे अजीम सरदार हमाम का है। तुम में से बेहतरीन और मजबूत जिस्मों वाले नौजवान का इंतखाब हम खुद करेंगे। तुम्हारे पास औरतें नहीं है, वरना उनका निसफ हिस्सा वसूल किया जाता। यानी तुम्हारी औरतों की जितनी भी गिनती होती उसमें से आधी औरतें हम रख लेते। और तुम्हारे साथ सिर्फ एक औरत है और उसका निसफ मुमकिन नहीं, इसलिए हम उसे भी बतौर राहदारी अपने साथ ले जाएंगे। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ हाथ उठाकर इशारा किया। उस शख्स की शरायत भी बड़ी इश्ताल अंगेज थी। और फिर भी महापुजारी ने सब्र तहम्मुल का सबूत दिया और बोला, तुम लोग हमारे जवानों का क्या करोगे? उन्हें रोककर तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ तो मालूम हो। लंबूते चेहरे वाला अजीब से अंदाज में हंसा और फिर बताया कि हम उन नौजवानों को अपना गुलाम बना लेंगे और दूसरे गुलामों की तरह उनके सीधे पैरों में आहनी कड़े डाल देंगे ताकि हर शख्स इन्हें पहचान सके और उनसे बेगार ले सके। और हम इसीलिए हमेशा मजबूत जवान वाले नौजवानों को मुंतखब करते हैं। रह गई औरतें तो उन पर पहला हक अजीम सरदार का होता है और फिर उसके नाइबों का और दूसरों का। ऐसी औरतों को किसी मर्द की बीवी बनने का हक नहीं होता। ऐ खबती बूढ़े, तुझे और कुछ पूछना है कि हम अपना काम शुरू करें? मैं देख रही थी कि आहरस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसे यकीनन लंबूते चेहरे वाले की बातें इंतहाई नागवार महसूस हो रही थी और यही कैफियत खुद मेरी भी थी। मगर मैं मसलहत के वक्त पेशे नजर से बर्दाश्त से काम ले रही थी और बहरहाल उन लोगों का पल्ला भारी था। हम तीनों में से महापुजारी उम्र बड़ा होने के सबब अफजलियत रखता था। इसने इसीलिए बुर्दबारी का सबूत दिया। इस मसले के हल की एक और हल निकालना चाहिए। ऐ शख्स, क्या ये मुमकिन है कि हम तेरे अजीम सरदार हमाम से मिल सकें? महापुजारी ने नरमी से कहा। महापुजारी की बात सुनकर यूं लगा जैसे वह शख्स सोच में पड़ गया हो और फिर चंद लम्हे बाद उसने कहा, मालूम नहीं सरदार तुम लोगों से मिलना पसंद भी करे या ना। आज तक ऐसा हुआ तो नहीं, इसलिए अब भी यही मैं तो कहूँगा बेहतर है तो ऐसा कर कि हमें अपनी बस्ती तक ले चल। अगर अजीम सरदार हमाम ने हमसे मिलना पसंद ना किया तो हम लौट आएंगे। हाँ ऐ बूढ़े, ये ठीक है, हम तुझे ले चलते हैं। सिर्फ तू ही साथ चलेगा कि कोई और भी तेरे साथ? ऐ महापुजारी, मैं भी तेरे साथ सरदार से मिलने चलूंगी। मैं बोल उठी। नहीं ऐ आतून, तू साथ ना चल। दूर अंदेशी का तकादा यही है कि मैं आहरस को अपने साथ ले जाता हूँ। महापुजारी ने मुझे समझाया। तो फिर हम तीनों ही चलते हैं। मैंने गोया फैसला सुना दिया। मुमकिन है कि कोई बेहतर सूरत निकल आए। और फिर महापुजारी ने लाख चाहा कि मैं उसके साथ ना चलूं, मगर मेरी जिद के आगे उसे मजबूर ही होना पड़ा। उन दोनों घुड़सवारों ने हमारी सिपाहियों को इजाजत दे दी कि वह पत्थर की दीवार के एक सिरे से भारी पत्थर हटा दें ताकि हमारे घोड़े दीवार की दूसरी सिमत पहुंच जाएं। हमारे सिपाहियों ने बद वक्त ये तमाम काम किया क्योंकि वह पत्थर खासी भारी थे। पत्थर हटने से रास्ता बन गया तो हम तीनों ने अपने घोड़े आगे बढ़ाए और दीवार की दूसरी जानब पहुंच गए। अब इन पत्थरों को दोबारा उनकी जगह रख दो ताकि रास्ता बंद हो जाए। लंबूतरे चेहरे वाले ने हमारे सिपाहियों को हुक्म दिया।
सिपाही सवालिया नजरों से हमारी तरफ देखने लगे तो महापुजारी ने उनसे कहा, ये जो कह रहा है सुनो और करो। इसकी आवाज बुलंद थी और हम सरदार हमाम से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अगर हम शाम तक लौट कर ना आए तो तुम लोगों को इख्तियार है, जो मुनासिब समझो सो करना। ऐ बूढ़े, तूने अपने लोगों से ये क्या कहा? लंबूते चेहरे वाला बिगड़ गया। क्या मतलब है इस बात का? इसका अंदाज जवाब तलबी का साथ। इस बदकलाम शख्स के हद तक अमीर रवैये के बावजूद महापुजार ने अपने लहजे में नरमी बरकरार रखी और बोला, तू शायद गलत समझ रहा है ऐ शख्स, मैंने अपने लोगों से कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल एतराज हो। हम तीनों इनकी रहनुमाई कर रहे हैं। ऐसी सूरत में हम यहाँ मौजूद ना हों तो उनको इख्तियार देना जरूरी था। तू बहुत अय्यार लगता है ऐ बूढ़े, उस शख्स ने महापुजारी को घूर कर कहा और फिर अपने साथी से मुखातब हुआ, तू यही रह, अगर ये लोग कोई फसाद करें तो तुझे ये इख्तियार देता हूँ कि तू खोखले पहाड़ में मौजूद मुहावजों को इन पर गोलियां बरसाने और इन्हें भूल डालने का इशारा दे दे। इसके लिए एक गोली चलाना ही काफी होगा। यह कहकर उसने हमारे सिपाहियों को बुलंद आवाज में मुतवज्जा करके धमकी दी, अगर तुमने यहाँ से फरार होने की कोशिश की या कोई गड़बड़ फैलाई तो खोखले पहाड़ों में मौजूद हमारे मुहाफिज तुम्हें भून कर रख देंगे और कोई गैर जिम्मेदाराना कदम उठाने से पहले ये भी ना भूलना कि तुम्हारे तीनों बड़े हमारे कब्जे में है और फिर तुम इन्हें जिंदा नहीं पाओगे, तुम इनकी लाशें ही उठाने आओगे। इतना कहने के बाद वो हमारी तरफ पलटा, मेरे पीछे आओ। उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। हमने उसके पीछे घोड़े डाल दिए। गुज़श्ता 2 रोज से हम इत्मीनान के साथ बगैर किसी रुकावट और परेशानी के सफर करते आ रहे थे और मौजूदा आफत ख्वाह मख्वाह हमारे गले पड़ गई। इस घाटी का चक्कर काट कर हम पहाड़ों की दूसरी सिमत पहुंच गए। काफी दूर तक छोटी बड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था और हम ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए लंबूतरे चेहरे वाले की रहनुमाई में आगे बढ़ते रहे। चट्टानों का वो सिलसिला खत्म हुआ तो निस्बतन हमवार मैदान नजर आने लगा। कुछ फासले पर हमें एक आबादी के आसार दिखाई दिए और जरा ही देर के बाद हम उस आबादी में दाखिल हो गए। खिलाफ तवक्का वो आबादी बहुत मखसूस सी थी। पूरी आबादी में सिर्फ एक इमारत सुर्ख और नाहमवार पत्थरों से बनी हुई नजर आई और हमारी आबादी छोटे बड़े झोंपड़ों पर मुश्तमिल थी। उन झोंपड़ों के दरमियान से गुजरते हुए हम पत्थरों वाली इमारत तक पहुंच गए जिससे इंतहाई कदामत का इजहार हो रहा था। उस इमारत के दरवाजे पर सिर्फ एक मसला शख्स नजर आया। लंबूतरे चेहरे वाला उसके करीब पहुंचकर घोड़े से उतर गया। अजीम सरदार हमाम से जाकर कह कि जिस शख्स का रास्ता रोका गया है उसके चंद अफराद मिलना चाहते हैं और उन मुलाकात के लिए आने वालों में एक नौजवान लड़की भी शामिल है। अगर हमाम इजाजत दे तो इन लोगों को उसके सामने पेश किया जाए। लंबूतरे चेहरे वाले ने मसला शख्स से कहा। वो मसला शख्स इमारत के छोटे से दरवाजे से अंदर चला गया और हम तीनों अब तक अपने घोड़ों पर ही सवार थे और मुझे ये देखकर जाने क्यों कुछ इत्मीनान सा महसूस हुआ कि वो आबादी इतने अफराद पर मुश्तमिल मालूम नहीं हो रही थी जितने सिपाही हमारे साथ थे। मुकाबला अगर किसी खुले मैदान में होता तो बहुत आसानी से उनसे ज़ैर कर सकते, मगर मजबूरी ये थी कि हमारी सिपाह को उन्होंने 2 तरफा से गोलियों के निशाने पर ले रखा था और खुद हमारी नजरों से उजल थे। हमारे सिपाही बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे और मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मखला शख्स लौट आया और वो आते ही बोला, सरदार हमाम कहता है कि आने वालों में से एक को मिलने की इजाजत दे सकता है, मगर सिर्फ उसे जो उम्र में सबसे कम हो। ये कहते हुए उसने मैंने खेत अंदाज में मेरी तरफ निगाह उठाई और मैं उसका इशारा समझ गई। यकीनन सरदार हमाम सिर्फ मुझी से मिलना चाहता था। मसला शख्स ने उसे बता दिया होगा कि मैं तीनों में से मैं ही कम उम्र हूँ। ठीक है, मैं सरदार से मिल आती हूँ। ये कहकर मैंने घोड़े से उतरने लगी। नहीं, आहरस बोल उठा, तू अकेली अंदर नहीं जाएगी। ए आतून, मैं तेरी जगह जाऊंगा। हरगिज नहीं, लंबूतरे चेहरे वाले ने मदाखलत की। तू उम्र में इस लड़की से बड़ा है और सरदार का हुक्म कि तुम तीनों में से कम उम्र, मगर हम तुम्हारे सरदार की ये शर्त क्यों माने? आखिरत सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे सरदार ने इसी लड़की को तन्हा अंदर बुलाने के लिए ये शर्त लगाई है। शर्त अब मानना ही पड़ेगी। लंबूतरे चेहरे वाले ने भी जवाब सख्ती से दिया। अगर तूने खुशी से शर्त कबूल ना की और हुक्म मानने से ग्रेज किया तो मैं जबरदस्ती इस लड़की को अंदर उठाकर ले जाऊंगा। और फिर इससे पहले के बात मजीद बिगड़ती मैंने आहरस को समझाया,
मेरी फिक्र ना कर ए अहरत, मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे अंदर जाने दे। महापुजारी के चेहरे से भी उलझन और फिक्रमंदी का इजहार हो रहा था और मैंने उसे मुखातब किया, तू क्या ये भूल गया ए महापुजारी कि तेरी आतून इससे भी ज्यादा मुश्किल मरहल से गुजर चुकी है। अंदेशों को अपने दिल से निकाल दे। क्या खबर तनहा मेरा ही अंदर जाना बेहतर साबित हो। मौजूदा सूरत हाल में शायद महापुजारी की कुव्वत का फैसला काम नहीं कर रही थी। वो इसीलिए बुझी हुई आवाज में बोला, ए आतून, देवता तेरी हिफाजत करे, तू जो बेहतर समझे सो कर। और वैसे भी बात अब हमारे इख्तियार की नहीं रही। अच्छा होता अगर तू हमारे साथ ना आई होती। तो फिर ए महापुजारी, ये भी मुमकिन था कि सरदार हमाम तुम दोनों में से किसी को मुलाकात की इजाजत ना देता। मैं घोड़े से उतरकर अब नीचे खड़ी थी। बहुत बातें कर ली तूने ए कम अकल लड़की, लंबूतरे चेहरे वाले ने अपनी आदत के मुताबिक तौहीन अंदाज में बोला, और अपने सारे हथियार यहीं छोड़ जा। और मैंने अपने गुस्से को जब्त करते हुए उसकी हदायत पर अमल किया और मैंने अपनी राइफल, कारतूसों की पेटी, खंजर, तलवार और तीर कमान तमाम हथियार महापुजारी के हवाले कर दिए और फिर लंबूतरे चेहरे वाले के साथ इमारत के दरवाजे में दाखिल हो गई। वो इमारत कुछ इस बेढंगेपन से बनी हुई थी कि दिन के वक्त भी अंदर नीम तारीकी सी थी। लंबे लंबे ढग बढ़ता हुआ लंबूतरे चेहरे वाला मेरे आगे आगे चल रहा था। दालान सा खत्म हुआ तो वह दाएं जाना मुड़ गया और मेरी आंखें अब नीम तारीकी में देखने की आदी हो चुकी थी। कुछ ही फासले पर एक दरवाजा नजर आया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। उस पर्दे के करीब पहुंचकर खिलाफी तवक्का लंबूतरे चेहरे वाला रुक गया और बुलंद आवाज में बोला, ए अजीम सरदार, मैं लड़की को ले आया हूँ। तेरी इजाजत हो तो मैं इसे तेरे पास अंदर भेज दूं। हाँ हाँ, भेज दे अंदर। नशे में डूबी हुई सी एक आवाज पर्दे की दूसरी तरफ से आई। खूबसूरत है ना? हाँ ए सरदार, खूबसूरत भी है और जवान भी, लंबूतरे चेहरे वाले ने जवाब दिया। और मुझे खतरे की घंटी बजती सुनाई दी, मगर मैंने फिलहाल खामोश रहना ही मुनासिब समझा। तो फिर तू ऐसा कर कि यहीं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पहरा देता रहे। क्या खबर कि वो भागने की कोशिश करे। अंदर से आवाज आई, बेहतर है ए सरदार, मैं यहीं पहरा देता हूँ। ए सरदार हमाम, तू मुझे गाफिल ना पाएगा। भेज दे इसे अंदर। जा अंदर और देख, तू सरदार को खुश कर देगी तो मुमकिन है वो सिर्फ तुझे बतौर राहदारी अपने पास रख ले और तेरे लश्कर को आगे जाने की इजाजत दे दे। लेकिन तूने उसे नाराज कर दिया तो फिर तो तू और तेरे साथी उसके कहरो गजब से नहीं बढ़ सकेंगे। धमकी देने का ये अंदाज बिल्कुल बचगाना था। मैं कुछ कहे बगैर पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। उस कमरे के वसत में जमीन पर मोटा सा गद्दा बिछा हुआ था जिस पर चादर थी और वहां मुझे तकिए के सहारे एक नौजवान नीम दराज नजर आया। 3 नौजवान औरतें उसके अलावा वहां मौजूद थीं जिनके जिस्मों पर बारीक कपड़े का लिबास था और बिस्तर के करीब ही एक सुराही और मट्टी के कोजे रखे थे और ऐसा ही एक कोजा उस नौजवान के हाथ में था जिसमें कोई मशरूब मालूम होता था। आ, तू भी हमारे करीब आकर बैठ जा, वाकई तू हसीन है और हमें अच्छी लगी। नौजवान मुझसे मुखातब हुआ तो मैं समझ गई कि यही सरदार हमाम हो सकता है और जब मैं बाहर खड़ी थी तो यही आवाज सुनी थी। इसी को लंबूतरे चेहरे वाले ने सरदार हमाम के नाम से मुखातब किया था। मैं उस नौजवान को देखकर हैरान थी कि वह बस्ती का सरदार था। उसकी उम्र तो अहरत से भी कम मालूम हो रही थी। तू अभी तक हमारे पास नहीं आई ए लड़की? नौजवान एक बार फिर मुझसे मुखातब हुआ। यह कहते हुए उसने कौड़े से मशरूब का एक घोंट भरा और मैं बेखौफी से आगे बढ़ती हुई बोली, अगर तू ही इस बस्ती का सरदार हमाम है तो मैं तुझसे ये पूछने आई हूँ कि तूने मेरे लश्कर को क्यों रोका? क्या मेरे आदमी ने तुझे इसकी वजह नहीं बताई? मगर तू पहले बैठ तो जा, अपना नाम तो बता। वो बोला, मेरा नाम आतून है और तेरे आदमी मुझे लश्कर को रोकने की वजह भी बता चुके हैं, लेकिन मैं उसे जुल्म समझती हूँ। ये कहते हुए मैं उसके सामने बैठ गई। हाँ, वाकई जुल्म तो है, मगर जुल्म के बगैर कोई काम नहीं चलता। क्या नाम लिया था तूने अपना? खैर जो भी हो, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि जुल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। अब तू ही बता, अगर मैं अपने बाप पर जुल्म ना करता, उसे कैद में ना डाल देता, तो आज इस तरह ऐश कर रहा होता।
बिल्कुल नहीं, तुझे नहीं मालूम कि मैं कितना अक्लमंद हूँ। वो बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। मुझे वो नौजवान बेवकूफ मालूम होता था। शायद कुछ खुद गर्दों और मौका परस्तों ने उसका साथ देकर उसे सरदार बना दिया था। गालबन इन्हीं लोगों के मशवरे पर उसने अपने बाप को कैद में डाल रखा था। बेवकूफ होने के अलावा और खुद सताई का शिकार भी लगता था और चेहरे से अयाश और नशे का आदी भी। गालबन वो कोई नशा आवर मशरूब ही उस वक्त भी पी रहा था। मुझे तो बिल्कुल अक्लमंद नहीं लगता तू, मैंने दानिस्ता उसे चढ़ाने वाले अंदाज में कहा, और मेरा खौफ अब बड़ी हद तक कम हो चुका था। शायद मैंने इसीलिए उसे चढ़ाने का खतरा मोल लिया, क्योंकि नशे में उसकी जहनी रूह बहक भी सकती थी और वो मेरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे सकता था। अगर मैं ये साबित कर दूं कि अक्लमंद हूँ फिर तो मेरे पहलू में आकर मुझे ये मशरू अपने हाथों से पिलाएगी। बोल। उसी वक्त मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका हुआ और मैंने सोचा यकीनन इमारत के अंदर इस वक्त लंबूते चेहरे वाले के सिवा कोई और महाफिज मौजूद नहीं, वरना वो नौजवान उसे पहरा देने के लिए ना कहता। और मेरा जहन तेजी से काम करने लगा, मगर कोई भी कदम उठाने में ये बात माने थी कि मेरा लश्कर गोलियों की जिद पर है और मेरे सिपाहियों की जिंदगी खतरे में। हाँ ए अजीम सरदार हमाम, मेरा लहजा बदल गया। अगर तूने खुद को अक्लमंद साबित कर दिया तो मैं ना सिर्फ तुझे अपने हाथों से ये मशरूब पिलाऊंगी बल्कि खुद भी पीऊंगी। तू पहले ये साबित कर कि वाकई अक्लमंद है। वो जैसे खिल उठा और खुश होकर कहने लगा, ये बता कि अगर सिर्फ 2 आदमियों के जरिए एक बड़े लश्कर का रास्ता रोक लिया जाए तो ये अक्लमंदी है या नहीं। और मैं चौंक उठी, मगर कैसे? ये मुमकिन ही नहीं। मैंने दानिस्ता उसे मजीद खरीदने की खातिर कहा। मुमकिन है, यही तो तुझे नहीं मालूम। वो हंस पड़ा। इसी को तो अक्लमंदी कहते हैं। तो फिर ए अजीम और अक्लमंद सरदार, बता किस तरह? जिस तरह मैंने तेरे लश्कर को रोक लिया, उसने हंसते हुए बताया। खोखले पहाड़ों में लोहों की नालों के सिवा कुछ नहीं, वहाँ एक आदमी भी नहीं, वो सब डरावा और दिखावा है। यहाँ इस बस्ती में इतने आदमी ही नहीं हैं कि अब मान गई तू मेरी अक्लमंदी को। उस बेवकूफ नौजवान ने से ये सुनकर मेरा जैसे सिरों खून भर गया और मेरे अंदर एक नई ताकत और हिम्मत आ गई। अब अपना वादा पूरा कर, इधर मेरे पहलू में आ और पिला मुझे। ए तू हट जा यहाँ से। उसने पहलू में बैठी हुई नौजवान औरत को कोहनी मारी और वो औरत अपने चेहरे पर नागवारी के आसार लिए दूर हटकर बैठ गई। मैं अब सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मैं अपनी जगह से उठी और उसके करीब जा बैठी। उसका कोदा खाली हो चुका था और जो उसने मेरे हाथ में थमा दिया, मैंने करीब रखी हुई सराही से कोजे में मशरूब डाला। फिर वो कोदा मैंने उस गबी नौजवान के होंठों से लगा लिया। वो एक घोंट भरकर कहने लगा, तूने ये भी तो कहा था कि तू खुद भी पिएगी, तुझे मैं पिलाऊंगा अपने हाथ से। ये क्या कर गोया उसने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। जिस कोदे से उसने घूंट भरा था उसी को वो अब मेरे होंठों की तरफ बढ़ा रहा था। ला मुझे दे, मैं खुद पी लेती हूँ। मैंने कूदा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं पिलाऊंगा। वो बच्चों की तरह जिद करने लगा और मजबूरन मुझे उस तलख और बदबूदार मशरूब का एक घोंट भरना पड़ा। ऐसा करते हुए मैंने सांस रोक लिया था और फिर जहां मैंने अपने होंठ रखे थे उसी जगह उसने भी अपने होंठ रख दिए और मुझे उस पर रहम आया, क्योंकि अब वो सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान था। और उसके बाद वही हुआ जिसकी मुझे तवक्का थी और जरा ही देर के बाद नौजवान सरदार हमाम के हाथ से कूदा छूट गया। उसके साथ वह बिस्तर पर ठहर गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। अरे ये सरदार को क्या हुआ? नौजवान औरतें घबरा गईं। मैं किसी को बुलाती हूँ, ये कहते ही मैं खड़ी हो गई और फिर तेजी से लपकती हुई पर्दा उठाकर बाहर आ गई। अच्छा भाग रही है तू? लंबूतरे चेहरे वाले ने मुझे देखते ही कहा और मुझ पर झपटा और मैं पहले ही उसके लिए तैयार थी। मैंने फौरन ही उसकी कलाई में दांत गाड़ दिए। उसने चीख कर दूसरे हाथों से मेरे सर के बाल पकड़ लिए। फिर इससे पहले कि मेरे बालों को खींचता मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। मैं अपना काम कर चुकी थी और कुछ ही देर में ये मेरा दूसरा शिकार था जिसे ढेर होने में ज्यादा देर ना लगी और मैं उसे एड़ियां रगड़ते हुए मरता छोड़कर पहले दालान में पहुंची और फिर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं दरवाजे से बाहर निकली तो मसला शख्स ने मुझे हैरत से देखा। शायद उसे मेरी इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। उसे गालबन लंबूते चेहरे वाले की तलाश थी जिसे मैं जहन्नम के सफर पर रवाना कर आई थी। मैं उसे नजरअंदाज करती हुई तेजी से महापुजारी के करीब पहुंची और उससे अपनी राइफल ले ली और फिर मैं मसला शख्स की तरफ पलटी और यूं उसकी तरफ बढ़ती हुई कि कुछ कहना चाहती हूँ
वो मेरे तरफ मतवज्जा हो गया। तेरा साथी अंदर दालान में बेहोश पड़ा है, उसे उठा ला। मैंने मसला शख्स से कहा। कैसे, कहाँ पड़ा है वो? उसने एक बार फिर मुड़कर दरवाजे के अंदर गौर से देखने की कोशिश की और यही कोशिश उसे महंगी पड़ी। दूसरे ही लम्हे राइफल का दस्ता उसके सर पर पड़ा और वो लहरा कर ढेर हो गया और मैंने दानिस्ता उस पर चलाने वाली गोली से ग्रेज किया था और धमाके की वजह से बस्ती वाले इस तरह मतवज्जा ना हो जाएं। वो इमारत बस्ती के एक दूसरे सिरे पर बनी हुई थी और शायद बस्ती वालों को इधर आने की इजाजत नहीं थी। आसपास इसलिए वहां कोई भी नहीं था। इमारत के अंदर अगर कुछ और लोग हों तो मुझे नहीं मालूम। मसला शख्स के ढेर होते ही दौड़कर मैं अपने घोड़े पर सवार हो गई। महापुजारी और अहरस यकीनन हैरान होंगे कि उन्हें अब तक ना मैंने कुछ बताया था और ना ही कुछ पूछने की मोहलत थी। निकल चलो यहाँ से, मैंने हैरतज़दा महापुजारी और अहरस से चीख कर कहा और अपने घोड़ों को लगाम खींच दी। उन दोनों ने भी मेरे साथ साथ अपने घोड़े दौड़ा दिए। बस्ती से घोड़े दौड़ाते हुए जब वो बाहर आ गए तो अहरस अपने घोड़े को मेरे घोड़े के करीब ले आया और बोला, ए आतून, कुछ बता तो सही कि क्या हुआ? धोखा? मगर किसके साथ? हमारे साथ। मैंने इतना बड़ा धोखा पहले कभी नहीं खाया। और फिर मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में खोखले पहाड़ों के फरेब से आगाह कर दिया। मगर तुझे आतून ये बात कैसे मालूम हो गई? अहरस बेयकीनी के अंदाज में बोला, सब कुछ बता दूंगी। पहले तो इस लंबूते चेहरे वाले के साथी को ठंडा करना है और फिर यहाँ से अपना लश्कर ले जाकर जल्द से जल्द दूर निकल जाना है ताकि वो लोग हमसे भिड़ने की या हमें रोकने की कोशिश ना करें। वो अपने नौजवान सरदार हमाम की मौत पर मुश्तबी हो सकते हैं। क्या? अहरस चौंक कर कहने लगा। क्या कहा तूने? उसे ठिकाने लगा दिया? मजबूरन ऐसा करना पड़ा, मैंने जवाब दिया। अहरस फिर कुछ नहीं बोला। उसे शायद सूरत हाल की नजाकत का कुछ एहसास हो गया था और ये वक्त बातों का नहीं है। छोटी बड़ी चट्टानों के नाहमवार इलाके को अबूर करते ही मैंने अपनी राइफल शाने से उतारकर हाथ में ले ली। अब हम घाटी में उतर चुके थे और दूर ही से सिर्फ हम तीनों को आते देखकर लंबूतरे चेहरे वाले के साथी ने हमारी तरफ राइफल सीधी कर ली, मगर उसे गोली चलाने की मोहलत ना मिल सकी। उससे पहले ही मैंने उसके सीने की तरफ गोली दाग दी। अगर वो हमारी तरफ अपनी राइफल सीधी ना करता तो शायद मैं उसे बेहोश करके वहां छोड़ जाती। राइफल सीधी करके खुद उसने अपनी मौत को दावत दी थी और जल्द ही हम तीनों तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए अपने साथियों के पास पहुंच गए, जहां हमारे रास्ते में पत्थरों की दीवार हायल थी। इन पत्थरों को रास्ते से हटा दो, अहरस ने चीख कर सिपाहियों को हुक्म दिया। डरने की जरूरत नहीं, खोखले पहाड़ों में कोई नहीं। सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर पत्थर हटाना शुरू कर दिए और इस मौका से फायदा उठाकर मैंने और पुजारी और अहरस को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से मुख्तसर आगाह कर दिया और वो दोनों हैरत से मेरी बातें सुनते रहे। कमाल है, तू ठीक ही कह रही थी। वाकई इतना बड़ा धोखा कभी किसी ने नहीं दिया होगा। रास्ते से पत्थरों की वह दीवार हटते ही हमने घाटी में तेजी से अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। उस बस्ती को बहुत जल्द हम पीछे छोड़ आए और मेरा ये अंदेशा गलत साबित हुआ कि बस्ती वाले हम पर हमला कर सकते हैं। शायद हमला ना किए जाने की वजह यह हो कि वहां अब हुक्म देने वाला ही नहीं रहा और नए सरदार का इंतखाब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। और ये बात वाकई हैरान को नहीं थी। सिर्फ 2 अफराद ने हमारे लश्कर को वहां से इतनी देर रोके रखा था। इस बस्ती के 3 अफराद को ठिकाने लगाना पड़ा था और तीनों ही मेरे हाथों मारे गए और मजबूरी के बावजूद उस पर मुझे दुख था। इस मुआशरे में जहां इंसानी जिंदगी की कोई खास अहमियत नहीं, मुझे नहीं क्यों मेरा ज़हन इस वहशत दो दरिंदगी को कबूल करने पर आमादा नहीं होता और कभी कभी मुझे यूं लगता था जैसे मैं इस मुआशरे और इस दारीना रवायात का हिस्सा नहीं हूँ, जैसे ये सब कुछ मेरा विरसा नहीं है। शायद यही वजह थी कि जब भी इंसानी खून बहता मुझे उस पर रंज होता। दिन भर तेज रफ्तारी के साथ सफर करने के बाद सूरज के गुरूब होते होते हमने एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दिया। मुझे जब नींद आने लगी तो मैं बिस्तर पर दराज हो गई। अहरस और महापुजारी भी सोने के लिए लेट चुके थे। नींद और बेदारी की वह मिली जुली सी कैफियत जब मैंने आशना और पुरअसरार सरगोशियां सुनी। ऐ माबला, तू जो ये सोचती है कि इस मुआशरे और उसकी दरीना रवायात का हिस्सा नहीं, तो ऐसा सोचने में तू हक बजानब है। यकीनन तू वो नहीं है जो बना दी गई। एक रोज ऐसा आएगा जब तुझे खुद अपनी हकीकत का इल्म हो जाएगा और वो दिन तेरी जिंदगी में जरूर आएगा। इन अल्फाज के साथ ही सरगोशियां मादूम हो गई
اور دوسرے دن صبح جب میں بیدار ہوئی تو رات کو سنائی دینے والی سرگوشیوں کا ایک ایک لفظ مجھے یاد تھا۔ مزید دو روز سفر کرنے کے بعد ہم اس بستی کے قریب پہنچ گئے جو مہا پجاری اور میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اے مہا پجاری، وہ رہا پہاڑی چشمہ۔ میں نے ایک طرف انگلی اٹھاتے ہوئے پرجوش آواز میں مہا پجاری کو مخاطب کیا۔ یہی وہ جگہ ہے نا جہاں وادی سبز سے فرار ہونے کے بعد میں نے اور تو نے پہلا پڑاؤ کیا تھا؟ تو نے ٹھیک پہچان کی ہے اے آتون، ہاں یہ وہی جگہ ہے، اور کچھ فاصلے پر وہ پہاڑی درہ نظر آ رہا ہے جسے عبور کر کے ہم سردار عاشر کی بستی میں پہنچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں چشمے کے کنارے پڑاؤ ڈال دینا چاہیے اور اس کے بعد ہم دونوں سردار عاشر سے ملنے بستی میں جائیں گے۔ کیا مجھے یہیں چھوڑ جائیں گے؟ احرس درمیان میں بوجھ اٹھا جو میری بائیں جانب اپنا گھوڑا روک چکا تھا اور ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلے چلنا، میں نے جواب دیا۔ میں تجھے اس بستی کے سردار عاشر سے ملواؤں گی، وہ ہمارا محسن ہے، اس نے مجھے اور مہا پجاری کو پناہ دی تھی۔ اور پھر اسی پہاڑی کے چشمے کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا گیا جس سے میرے بچپن کی کئی ہولناک یادیں وابستہ تھیں۔ اسی چشمے کے کنارے پہلی بار ایک شخص میرے اندر موجود زہر کا شکار ہوا تھا اور یہی مہا پجاری اور میں نے 4 مسلح افراد کا مقابلہ کیا تھا جن میں سے 2 مارے گئے۔ ایک کے سینے میں مہا پجاری کا خنجر ترازو ہوا تھا۔ خیمہ لگایا جا چکا اور میں نے کھانا کھا کر احرس کے ساتھ چشمے کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ احرس کو میں اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات سے آگاہ کر رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سنتا رہا۔ یہی پہلی بار میں نے اس پر یہ راز افشاں کیا کہ مجھ پر کوئی زہر کیوں اثر نہیں کرتا۔ اے آتون، مجھے پہلے خبر نہیں تھی کہ تو اتنی زہریلی ہے۔ احرس کے لہجے میں حسب عادت شرارت اود آئی۔ اگر تجھے پہلے سے بھی خبر ہوتی تو کیا کر لیتا؟ میں مسکرا کر بولی۔ کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ تیری آرزو نہ کرتا۔ تو ابھی کیا بگڑا ہے اے احرس، نہ کر میری آرزو۔ اب یہ میرے بس میں نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ تو کبھی مجھ سے خفا ہو کر مجھے کاٹ کھائے گی اور میں مر جاؤں گا، اور تیری خاطر مجھے یہ بھی قبول ہے، مرنا تو ایک دن ہے، اسی طرح ہی صحیح، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اسی وقت ایک جانب سے مہا پجاری آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آ کر وہ مجھ سے بولا، کیا بستی نہیں چلنا ہے اے آتون؟ کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا اور احرس کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھی جس کے سامنے ہمارے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔